ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗੇ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਛਾਰ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ, ਸਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ। ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਰਸਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕਵੀਆਂ ਲਈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਲਈ, ਸੰਤ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੇ, ਚੌ ਉਮਾਹਾਂ ਹੋਏ। ਨਾਗਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਰਸੀਆਂ ਘਰ ਧਨ ਹੋਏ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਬਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਵਣ ਦੀ ਬਰਖਾ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਬਰਖਾ। ਫਿਰ ਮੱਛੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜ, ਸਰੋਵਰ, ਤਲਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਲੱਭਣੀ ਔਰ ਵਿਚਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਵਣ ਨੇ ਲਬਾਲਬ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਗਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਘਰ ਧਨ ਹੋਏ। ਰਸਿਕ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਮਾ ਤੇ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਿਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੇ, ਚੌ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ। ਗਾਈ ਪੂਤਾ ਨਿਰਧਨਾ, ਪੰਥੀ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਖਾ ਵਿੱਚ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਕਰ ਲਈ ਵੀ ਬਰਖਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਖਾ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾਗਾਂ ਲਈ, ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ, ਮਿਰਗਾਂ ਲਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੇ, ਚੌ ਉਮਾਹਾਂ ਹੋਏ। ਨਾਗਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਘਰ ਧਨ ਹੋਏ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਮੰਗ ਨੂੰ, ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਪੁਗਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧੁਨਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਪਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੀਜ
बाहर हुण पुंगरना चाहते ने, निकलना चाहते ने, तो सिर्फ धरती दे ही बीज क्यों? आखिर मनुख दा अंतਿਸ਼ਕਰਣ भी एक ऐसी धरती है जिस दे अनंत जन्मां दे बीज पए ने। बाहर दी इस बरखा तो मनुखी हिरदे भी प्रभावित होंदे ने, और जिथे वख-वख सुभाव दे मनुख प्रभावित होंदे ने, उत्थे भगत, धार्मिक, प्रभु मार्ग दे पांधी भी प्रभावित होंदे ने। और जिस ढंग दा ओ प्रभाव उन्हां दा हिरदा कबूल करदा है, जगत गुरु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सावण दे महीने दे राही उसदी रूप रेखा इन चित्रदे ने। सावण सरसे कामणी चरण कमल सिंह प्यार। सावण दे महीने विच जीव रूपी स्त्री भी भिज गई। इहदी अंतिष्करण दी धरती भी कोमल हो गई, वत्र पै गया। और यह भी एक सच्चाई है कि नाम नूं भी एक बूंद आख्या गया है, परमात्मा दे सिमरन नूं भी कणी आख्या गया है। तदी ते महाराष्ट्र दे संत भगत नामदेव जी महाराज इस सिमरन नूं सावण नाल जो है तशबीह देंदे ने। आप दा बड़ा सुंदर फरमान, बिन सावन घन हर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तत् विचारे कोई। मेरे हृदय रूपी आकाश ते ऐसे प्यार दे बदल छाए ने, सिमरन दी बरखा हो गई है, हृदय कोमल हो गया है, हृदय सरस गया है। तो जीव रूपी स्त्री दे अंदर भी प्रभु प्यार, प्रभु दी लगन पैदा हुई। धरती हरा भरा होना चाहती है, इस अभ्यासी दा हृदय भी हरा भरा होना चाहता है। सावण तो ए प्रेरित, मन तन रत्ता सच रंग, इको नाम आधार। मन विच उसदी याद है, ते इस याद दी छाप तन दे उत्ते है। इंज मन ते तन परमात्मा दे नाम विच रंगिया गया है। हुण एक दी टेक, एक दा ही आसरा, केवल उसदे नाम दा ही आधार, और इसे ही आधार दे नाल जीवन बतीत करना जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। क्योंकि ये सूझ पै गई है, विखिया रंग कुड़ाविया, दिसन सब्बे छार। जो विषयां दे रंग ने, विकारां दे रंग ने, कूड़े ने। स्वाह होंदियां देर नहीं लगदी, छार होंदियां देर नहीं लगदी। देखदियां देखदियां ए रंग, ए रस बिखर जांदे ने, छिन भंगर हो जांदे ने। हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवनहार। सत्संग एक ऐसा वातावरण है जिथे शब्द रूपी बदल बरसदा है साधुआं दे मुखों। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, परमात्मा दा नाम अमृतमयी बूंद है, पर साधुआं दी संगत विच पीता जा सकता है। सत्संग विच बैठ के इस बूंद दा आनंद माणिया जा सकता है, सरशार होया जा सकता है। वण तिन प्रभ संग मोह लिया, समर्थ पुरख अपार। वो परिपूर्ण परमात्मा अपार है, समर्थ है, व्यापक है। ऐसा बरसे है कि वण तिन मौलिया गया है, हरा भरा हो गया है। इसे तरीके दे नाल परमात्मा बरसदा है अभ्यासी दे मन दे उते। ओदा रोम रोम खिड़ उठदा है, ओदे तमाम इंद्रे बाग बाग हो जांदे ने, ओदे कन सरशार हो जांदे ने प्रभु नूं सुन के। उसदे नेत्र विशाल हो जांदे ने उस विशाल परमात्मा नूं जो है वेख के। हर मिलणे नूं मन लोचदा, करम मिलावण हार। सावण दी बरखा अभ्यासी नूं इंज प्रेरदी है, मन लोचदा है प्रभु मिलण नूं, तड़पदा है। बरस रहा है सावण, जप रही है रसना वाहिगुरु वाहिगुरु। इंज चिंतन जो है चल रहा है, और जपदियां जपदियां अंदर लालसा पैदा हो गई, लोचा पैदा हो गई। प्रभु मिले, ईश्वर मिले, पर करम मिलावण हार। परमात्मा दा मिलाप ते परमात्मा दी बख्शिश नाल ही हो सकता है, उसदे कर्म नाल ही हो सकता है, उसदी रहमत नाल हो सकता है।
जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिन कै सद बलहार। जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, मैं उन्हां जीव इस्त्रियां तो सदके जाना, बलहारने जाना, कुर्बान जाना जिन्हां ने अपना जीवन इस ढंग नाल सफल कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति कर ली। नानक हर जी मया कर सबद सवारनहार। हे हरि रहमत कर, बख्शिश कर। शब्द द्वारा जीवां नूं सवारण दा जो ਇਹ ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਇੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਠ ਨੇ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस प्रकार देंदे ने। सावण सरस मना घण वरसे रुत आए, मैं मन तन सौभावे फिर परदेस सिधाए। फिर घर नहीं आवे मरिए हावे, दामन चमक डराए। सेज इकेली खरी दुहेली, मरण भया दुख माए। हर बिन नींद भूख को कैसी, कापड़ तन ना सुखावे। नानक सासो हागण कंती, फिर कै अंक समावे। धार्मिक जगत विच ऐसा देखा गया है कि धर्म की परम शिखरता ते जो पुरुष पहुंचे ने, कई दफा उन्हां दे बोल नारी दे हो गए ने। और ऐसा भी देखण दे चाहे जद कोई इस्त्री धर्म की शिखरता नूं छू के परम आनंद प्राप्त करदी है, उहदे बोलां विच मर्दपणा झलकण लग पैंदा है। आम साधारण जगत नूं हैरानगी आउंदी है कि पुरुष होके बोल नारी दे या नारी होके पुरुष बोल जो है पुरुष दे बोल मर्दां दे बोल, तो हैरानगी होती है। दरअसल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक बड़ा सुंदर वाक है, पुरख में नार नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नूं कौन जाने कि पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। दरअसल मनुख दा ये शरीर माता पिता दे जोड़ तो आया है, तो शरीर दे कुछ मां दी अंश है, कुछ पिता दी अंश है। शरीर कुछ नारी है, कुछ पुरुष है। अगर तन दे ऐसी अंश है तो मन आखिर पंज तत्तां दी सूक्ष्म सतो अंश है। इस दे विच भी स्त्री ते पुरुष दे तत्व मौजूद ने। कोई मन पूर्ण रूप दे पुरुष मन नहीं है और कोई मन पूर्ण रूप दे नारी मन नहीं है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है कि उस दे स्त्री दे कण ज्यादा सन, पुरुष दे कण घट सन। ते पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है
कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਨਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਬਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟ ਤੇ ਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਨਾਰੀ ਦੇ ਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚ ਪੁਰਸ਼ ਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ पुरुष है तो भावना नारी है। संतोख पुरुष है पर दया नारी है। जिथे सूरबीरता पुरुष है उत्थे शांति नारी है। ये जिहड़े दैवी गुण ने ये भी सारे दे सारे इस तरीके नाल ही जो है वंडे हुए ने। जद भी कोई पुरुष तन ते बहुत जिसदा मन पुरुषमई है, जद धर्म दी चरम सीमा नूं छूंदा है, परमात्मा तक अपड़दा है, तो उहदे बोल नारीमई हो जांदे ने। और कदी नारी ब्रह्म दी शिखरता तक पहुंचे तो उहदे बोलां विच पुरुष जो है झलकण लग पैंदा है। ये इस वास्ते विचार सामने रखिए कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां पावन पवित्र वाकां दे अंदर जो बोल रहे ने ये नारी बोल ने, स्त्री दे बोल ने। दरअसल पुरुष ते है ही, एक कण ते उस दे अंदर ज्यादा ने। नारी जो खामोश सी, जो सुती हुई सी, प्रभु चिंतन दे नाल जाग पई। पुरुष दे अंदर दया पैदा हो जाए, शांति पैदा हो जाए तो पुरुष मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि उस दे अंदर नारी गुण पैदा हो गए। पर जे नारी दे अंदर सूरबीरता पैदा हो जाए, संतोख पैदा हो जाए, ज्ञान पैदा हो जाए, तो उस दे अंदरों भी पुरुष ने जन्म ले लिया और वो पूर्ण हो गई। ये जो असी नारी नूं कहंदे आ अर्ध अंग, अद्धा शरीर, सिर्फ नारी ही अर्ध अंग नहीं, पुरुष भी अर्ध अंग है। दोवें अर्ध अंग ने। ये बाहरों भी अद्धे ने, ये अंदरों भी अद्धे ने। और अद्धा पूर्ण होना चाहता है, ये अद्धा संपूर्ण होना चाहता है। तदी ते पुरुष दे अंदर नारी दी खिच है और नारी दे अंदर पुरुष दी खिच है। ये कशिश, ये खिच, इस गल दा सबूत है दोवें अधूरे ने, मिल के संपूर्ण होना चाहते ने, मुकम्मल होना चाहते ने। जे तन दे तल दे उते ऐसी बहबलता है पूर्ण होण दी, और ये पूर्ण ढंग नाल हो सकन, सही तौर तरीके नाल हो सकन, पूर्णता सुखमई होवे, समाज ने बकायदा नियम बनाए ने जिसनों विवाह कह देंदे ने, आनंद कारज कह देंदे ने, शादी कह देंदे ने। शादी दा मतलब है इन्हां दो अधूरे शरीरां नूं संपूर्ण करना है, मुकम्मल करना है, पूर्ण करना है। अगर ऐसा है तो फिर पुरुष ते नारी मन दे तल ते भी ते अधूरे ने। अगर पुरुष मन नूं शांति ना मिली, अगर पुरुष मन नूं भावना ना मिली, अगर पुरुष मन नूं दया ना मिली, तो अंदरों अधूरा रहेगा, भावें बाहरों संपूर्ण हो जाए। पर नारी मन नूं ज्ञान ना मिलिया, नारी मन नूं संतोख ना मिलिया, तो भावें ये बाहरों ते पूर्ण होवेगी, अंदरों अपूर्ण होवेगी, अधगति च होवेगी, दुखत होवेगी, पीड़ित होवेगी। प्रभु चिंतन करन दे नाल नाल नारी दे अंदर मन दे च ये पुरुष कण पैदा हो जांदे ने, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ते ज्ञान नूं पुरुष आख्या गया। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे। पर भावना ते भक्ति नारी है। जैसे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते ने, निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। जे तन नूं नारी चाहिदी है ते जे तन नूं पुरुष चाहिदा है, तो मन नूं भी नारी चाहिदी है, मन नूं भी पुरुष चाहिदा है। पुरुष मन प्रभावित होंदा है
भावना ते दया ते। नारी मन प्रभावित होंदा है ज्ञान ते सूरबीरता ते संतोख ते। ये जो अंदर दी खिच है और एक दूसरे का जो है प्रभाव कबूल करना है, ये संपूर्णता दी तलाश है और पूर्ण होना है। पूर्ण पुरख भी होई है कि जिस दे ज्ञान नू भावना मिल गई या जिस दी भावना नू ज्ञान मिल गया, वो पूर्ण नारी है, वो पूर्ण पुरुष है। नहीं ते अधूरी नारी है और अधूरा पुरुष है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्ण पुरख ने। आप दे अंदर दैवी गुण पुरुषमयी ते सारे ने, नारीमयी भी पूर्ण दे पूर्ण ने। आप दे बोलां दे कोमलता है, मधुरता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तद ही थां थां ते इस तरह दे भी कुछ बोल बोलदे ने जो नारी दे बोल ने। भगत कबीर भी ऐसा कहंदे ने, कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पिर हूं हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लाहौरिया। कबीर ते अपने आप नू बहु पै साबित करदे ने, मैं ते राम दी वोटी हां, मैं ते राम दी बहू हां, राम मेरा पति है। ऐसा क्यों? दरअसल पुरुष तन पुरुष मन ते कबीर दे कोल हैगा ही सी। प्रभु चिंतन दे नाल ਉਹ कण जो नारीमयी सन, सुते पै सन, वो भी जाग पए। और संपूर्ण मनुख उदों ही आउंदा है जद कोई मन दे तल ते संपूर्ण होवे। ते संपूर्ण मन वही है जिस दे अंदर भावना भी है, जिस दे अंदर ज्ञान भी है, जिस दे अंदर दया भी है, जिस दे अंदर संतोख भी है। तो सावण दे महीने दा संदेश उपदेश देंदे होया जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, सावण सरस मना घण वरसे रुत आए। हे मन, सावण दा महीना आया, बदल पे वरसदे ने, चारों पासे धरती सरस गई है, मौल गई है। मैं मन तन सौ भावे फिर परदेस सिधाए। मेरे मन नू भी ज्ञान चाहिए है, मेरा मन भी प्रभावित है परमात्मा दे गुणां तो, उन्हां दी लोड़ है। पर की कीता जाए, प्रभु ते दूर ने, प्रभु दा ते कोई पता नहीं। वो ते इंज जापदा है जिवें परदेस ने। सावण दे महीने विच वो स्त्री जिसदा पति परदेस चला गया है, वो बिरहों कुठी जो बोल बोलदी है और जिस ढंग नाल उसदा हिरदा तड़पदा है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उसदा ही रूपक अलंकार बना के जगत दे सामने रखे है। मैं मन तन सौ भावे फिर परदेस सिधाए, फिर घर नहीं आवे मरिए हावे दामन चमक डराए। पति घर नहीं आ रहा, होके बिरहे दे होके, विछोड़े दे होके। जितना गहरा विछोड़ा होवे उतना ही गहरा होका होंदा है, और होका तड़पा के रख देंदा है, होका तड़पन पैदा करदा है। मरिए हावे दामन चमक डराए। ये जो रात दे समय आसमान ते बिजली चमक पैंदी है, डर लगदा है। अकेली सेजा ते डर लगदा है। पति तो बिना ये बिजली डराउंदी है। नानक बिजलियां चमकन घुरन घटा अत कालियां। काले बदल ने, बिजलियां चमक रही ने, पर हिरदे दी सेजा ते खाली है। मिलाप नहीं, प्रभु दर्शन नहीं। तो ये एक व्याकुलता है, बहबलता है। लिशक याद दी जो पै जाती है, ये बिजली मानो चमक पैंदी है, कुछ असलियत दिस पैंदी है, कुछ हकीकत दिस पैंदी है, सच्चाई दिस पैंदी है। और जैसे बिजली दी लिशक एकदम अलुप्त हो जाती है, इस तरह याद, इस तरह
उस सब कुछ दी जो प्रतीत है जैसे अलुप्त होंदी है, डर लगता है, भय लगता है। ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਤਰਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ ਸੇਜ ਅਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਨ ਭਇਆ ਦੁਖ ਮਾਏ। हे ਮਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਤ ਜੈਸਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। क्यों कि अनंत काल तो सेज अकेली है, प्रभु मिलन नहीं, ईश्वरी मिलन नहीं। सेज अकेली खरी दुहेली मरण भया दुख माए। हर बिन नींद भूख कहो कैसी कापड़ तन ना सुखावे। दो हालतां विच कहंदे ने भुख मर जाती है और कुछ भी चंगा नहीं लगता। एक ते परम खुशी होवे, परम खेड़ा होवे, उस खेड़े की हालत विच भुख मर जाती है। मनुख खुशी नाल ही इतना भर जाता है, जीव उस खेड़े नाल ही इतना भर जाता है, भुख मिट जाती है, भोजन की कशिश नहीं रहिंदी। या फिर बिरहे की पीड़ा होवे, तो बिरहे की पीड़ा इतना बेचैन कर देंदी है, इतना व्याकुल कर देंदी है, भुख मर जाती है। ये दोवें हालतां असी देखते हैं। घर दे इकलौते बच्चे की शादी होवे और तरह तरह के पकवान बन रहे होन, सब स्त्री पुरुष छक रहे ने, पर बच्चे की मां खुश है, प्रसन्न है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। सहेलियां बांह पकड़दियां ने, भैन तू भी खा, आ बैठ। पर कहती है, ठहर, मैनू अजे भुख नहीं, मैं अजे नहीं खावना। क्यों? खुशी नाल भर गई, खेड़े नाल भर गई। भावें तरह तरह के पकवान पए ने, पर खुशी ने इतना आनंदित कर दिता है, हुण भोजन मध्यम हो गया है, दूजे नंबर ते हो गए। या फिर बिरहा होवे तो बिरहे दे च भी अन्न पानी लैण नूं जी नहीं करता। सो ओही दृश्य मेरे पातशाह सामने रखते ने। हर बिन नींद भूख कहो कैसी कापड़ तन ना सुखावे। हुण चंगे कपड़े पाना भी चंगा नहीं लगता, भुख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। परमात्मा तो बिना भुख ते प्यास किथे। बिरहा विछोड़ा भुख ते प्यास नूं मार देंदा है। यही कारण है बिरहा बैरूनी होवे या अंदरूनी होवे, या बाहरों विछोड़ा होवे या अंदरों परमात्मा दा विछोड़ा होवे। ये जो विछोड़ा है, ये जो बिरहा है, ये भुख नूं मार देंदा है, प्यास नूं मार देंदा है, और मनुख दा कुछ खाण पीण नूं जी नहीं करदा, और पहनण नूं कोई चंगे वस्त्र पहन लईए, ये भी अंदर उमंग ते तरंग नहीं रहिंदी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सावण दे महीने दा फिर इंज आखिरी उपदेश करते ने। नानक सा सोहागण कंती पिर कै अंक समावे। सावण दे महीने विच वास्तविक ओही सुहागणी है जो कंत वाली है, जिदे अंक प्रभु आण मिले ने, जिदे हिरदे दी सेजा विच प्रभु आण बैठे ने। बरखा होंदी होंदी सिमरन चल पिया, और सिमरन चलदियां चलदियां प्रभु मिलाप हो गया। तो जिवें सावण दे महीने विच धरती सरस गई है, हरी भरी हो गई है, इस तरह ही जीव रूपी इस्त्री दा हिरदा हरा भरा हो जाता है, और उहदे माने मन सावण आया है, खूब वरसे है, खूब वरसे है।